Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we'll start from part 4 of question number 3. Part 4 is we are given that D equals to part number 4 में हमें दिया गया है D 5 के बराबर है, S 9 equals to 75 and we have to find हमें क्या निकालना है यहाँ पे A and A9. We are given that D कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे दी गई है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है. S9 sum of 9 terms, that is 75. So what we have to find? We have to find first term and ninth term. We know that in order to find the sum of n terms of AP, हमारे पास एक relation है, that is Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where we know that n equals to number of terms of an AP. A is the first term, Sn to sum of n terms of AP, and d is the common difference. We know that हाँ बेटा हमें पता है कि Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे here n equals to 9, ये S9 यहाँ पे दिया गया, तो that is obviously n का वैल्यू 9 के बराबर है, d equals to 5 and S9 equals to 75, that is we can write it as n 9 के बराबर, या we can write as S9 equals to 9 by 2 into 2a plus n minus 1 9 minus 1 into d. तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास दी गई है वो तो 5 के बराबर, ठीक है, शाबाश. और S9 दिया गया है, इट इज इक्वल टू 75 equals to 9 by 2 into 2a plus 8 into 5. बात समझ आई, शाबाश. और we can write it as 75 into 2 divided by 9 equals to 2a plus 8 5 हो गया 40, शाबाश. हाँ, 3 3s 9, 3 2s हो गया 6, तो यहाँ पे 3 5 15, 25 2s क्या हो गया, 25 2s, वेरी गुड, 25 2s हो गया 50 डिवाइड बाई 3. तो यहाँ से हम 40 को ट्रांसपोज करते हैं, -40 बाई 1 इक्वल्स टू 2a, दैट इज 50 minus 120 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2a, शाबाश. और we can write it as 120 minus 50. तो 120 में से हमने 50 जो माइनस 120 है, तो माइनस 120 प्लस 50, हाँ 12, that is 70. We can write it as minus 70 divided by 3 into, यहाँ से 2 को ट्रांसपोज करते हैं, into 1 by 2 equals to a. और we can write as 2 1s 2, 2 3s हो गया 6, 2 5 is 10, or a equals to, yeah, we can write it as minus 35 by 3 equals to a, or a equals to minus 35 by 3. हमारे पास अब a का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ a p है minus 35 divided by 3. Now we know that a9, अब हमने a9 निकालना है, तो a9 हमें पता है, for ninth term of AP, for A9 we have, that is A n equals to A plus n minus 1 into D, ठीक है ना बेटा, शाबाश. That is an, तो A9 equals to A plus 9 minus 1 into D, और A9 equals to A plus 8d, or we can directly write it as a9 equals to a plus 9 minus 1 into d, that is a plus 8d. Now substituting the values, that is a9 equals to a का वैल्यू है minus 35 by 3
प्लस 8 इंटू व्हाट इज डी। हाँ, डी का वैल्यू क्या है, हमें दिया गया है डी हियर, डी इक्वल्स टू 5 और we can write as a9 equals to minus 35/3 प्लस 8 5 हो गया 40। ठीक है बेटा, और a9 equals to minus 35 प्लस 30034 is 12 120 divided by 3। Very good। a9 equals to 120 minus 35, 10 minus, हाँ 10 minus 5 हो गया 5, तो यहाँ पर 11, so that is 85, or we can write it as a9 equals to 85 divided by 3। फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, that is, तो यहाँ पे हमारे पास a9 हमने निकालना था। a9 we know that for ninth term of AP हमारे पास है an equals to a plus n minus 1 into d, that is a9 equals to 9 minus 1 into d, that is a9 equals to a plus 8d। Therefore, by substituting the value of a and d, what we get, that is minus 35। तो value of a हमारे पास है, तो d का value 5 है, तो we can write as a9 equals to minus 35/3 plus 40, और a9 equals to minus 35 plus 120 divided by 3, that is a9 equals to 120 minus 35, तो वो 85 के बराबर आ जाता है। Therefore, the required, that is the required what we were supposed to find, that was the find the first term। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास minus 35 divided by 3 आ रही है, और नाइन्थ टर्म इसी AP की हमारे पास किसके बराबर आती है, 85 divided by 3। ठीक है बेटा। नाउ आई होप यू पार्ट नंबर 6, फिफ्थ मैंने दिखाया, सिक्स आपको आएगा, सेवंथ में दिखाता हूँ, और पार्ट नंबर 8 9th और 10th की आप खुद प्रैक्टिस करोगे। दैट विल रिमाइंड होम असाइनमेंट्स फॉर यू पीपल। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल कर सकते हो, जैसे कि आप में से जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कॉल ऑन माय नंबर, और आप मेरे नंबर पे भी वो आंसर्स सेंड करते हो। तो मैक्सिमम बच्चे आप में से कॉल मुझे करते हैं जो जहाँ कहीं भी उनको कंफ्यूजन होता है। एंड नेवर हेजिटेट इन कॉलिंग ऑन माय नंबर, यू आर वेलकम ऑलवेज। नाउ पार्ट नंबर 7 इज, हाँ पार्ट नंबर 7 यहाँ पे हमारे पास है। चलो बेटा, पार्ट नंबर 7 है, वी आर गिवन दैट a इक्वल्स टू 8, हाँ an इक्वल्स टू 62 एंड sn इक्वल्स टू 10। ठीक है बेटा। फाइंड, वी आर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड n एंड d, और हमने d यहाँ पे डिटरमाइन करना है। एक तो n नंबर ऑफ टर्म्स इसकी डिटरमाइन करनी है जिसका sn 210 है, और उसी में से हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वी नो दैट, हमें पता है sn या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू sn, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ab किसके बराबर है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू sn। और हियर तो n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, और इसके बदले हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a, हम a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू sn। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे d का वैल्यू कहीं से आ जाता है, या सॉरी a का वैल्यू अगर आएगा या n का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, तो वी कैन इजीली, a का वैल्यू दिया गया है, तो अगर हमें इसमें से n का वैल्यू आ जाता है तो इजीली वी कैन डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस बाय यूजिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और इसके बाद हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a n के बराबर है। वो पूरा किसके बराबर है, sn के बराबर। हियर a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 एंड sn बेटा किसके बराबर है, 210 के बराबर। जैसे कि यहाँ पे a 8 के बराबर दिया गया, an दिया गया है, तो दैट मीन जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, इसको हमने कन्वर्ट ऐसे करना है ताकि जो हमें दिए गए वैल्यूज हैं, तो दैट मीन जहाँ पे हमें 3 वैल्यूज दिए गए हैं, तो इजीली वी कैन फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ n।
और n/2 इंटू ए के बदले क्या आएगा 8 + 62 इक्वल्स टू 210। क्लियर? हाँ, n/2 इंटू 62 + 8 दैट इज 70 इक्वल्स टू 210। बात समझ आई? शाबाश। और इसके बाद लिख सकते हैं 2 1s 2 3s 2 5s that is n into 35 equals to 10, n equals to 10 divided by 30, हाँ n equals to 210 divided by 35 that is n equals to 210 divided by 35 जब आप करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो वो 6 के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। और वी कैन चेक इट एज 35 into 6, 6 5 is 30, 3 is carry, 6 3s are 18 plus 3 हो गए 21 that is 210। तो यहाँ पे अगर हम n के बदले 6 लिखेंगे तो ये करेक्ट इसका है n 35 1 35 6, therefore we get the value of number of terms। यहाँ पे कितनी है इसकी 6। Now what we have to find? We have to find, एक तो हमने क्या निकाला था n तो आ गया हमारे पास, तो n का वैल्यू है 6। Now what we have to do? What we have to find? We have to find the common difference। अब हमने यहाँ पे इसकी common difference that is value of d निकालना है, ठीक है ना। For d we have a plus n minus 1 into d equals to a n। Here a इक्वल्स टू 8, n तो आ गया 6 के बराबर और d हमने निकालना है एंड ए एन दिया गया है 62 के बराबर, ठीक है ना बेटा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ, तो हमने क्या काम करना है, a का वैल्यू क्या आएगा 8 + n - 1 6 - 1 इंटू d इक्वल्स टू 62 6 दैट इज 5d इक्वल्स 62 - 8, ठीक है। तो 62 में से हम क्या काम करते हैं 8 निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट 12 - 8 हो गया 4, तो दैट इज 54। और वी कैन राइट इट एज 5d इक्वल्स टू 54 और d इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रही है तो 54 divided by 5, therefore we can say that therefore number of terms value of n equals to 6 and d equals to 54 divided by 5। और इसके बाद इसके और पार्ट्स हैं, दैट इज पार्ट नंबर 7 मैंने दिखाया, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 में हमने सेम ऐसे ही जितने जो हमने प्रोसीजर्स किए हैं, जितने पार्ट्स मैंने दिखाए वही प्रोसीजर फॉलो आपने करना है। तो वहां पे कहीं पे SN दिया गया होगा, n दिया गया होगा, a दिया गया होगा तो d निकालना होगा, कहीं पे आपने n निकालना होगा, कहीं पे हमने क्या करना होगा SN निकालना होगा। तो आई होप कि आपको ये जो रिमाइनिंग असाइनमेंट जो आपके रिमाइनिंग पार्ट जो है यहाँ पे दैट इज पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 आपको खुद आएंगे, ठीक है ना, किसके क्वेश्चन नंबर 3 के। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। हाँ बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी, हाँ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कितनी टर्म्स एपी की, एपी क्या हमारे पास 9, 17, हाँ 25 अप डैश मस्ट बी टेकन। कितनी टर्म्स हम ले सकते हैं मस्ट बी टेकन, हाँ टेकन टू गिव सम 636, ठीक है बेटा। तो कितनी टर्म्स हम एपी की लेंगे, वी नो दैट ये तो दैट मीन सम ऑफ एन टर्म हमारे पास क्या है, वी नो दैट, हाँ बेटा हम जानते हैं कि एस एंड क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी टर्म्स हम इस एपी के लेंगे ताकि सम हमारे पास किसके बराबर आएगा 636। वी नो दैट सब फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी हमारे पास है Sn equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d। here इसने वहां से दिया है Sn दैट इज 636, a है हमारे पास 9 के बराबर, अब d किसके बराबर है a2 minus a1 दैट इज d इक्वल्स टू 17 minus 9, तो d 8 के बराबर आ जाता है, 9 plus 8
हाँ दैट इज 17। बात समझ आई ना, शाबाश। तो डी, अब वी कैन इजीली डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एन और एस एन, और इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं और एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एस एन। ठीक है, एन बाई टू वैल्यू पता नहीं है, इंटू टू, ए का वैल्यू क्या दिया गया है, शाबाश, ए 9 के बराबर है, प्लस एन माइनस वन इंटू व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज 8 इक्वल्स टू 636। ठीक है, शाबाश। एन बाई टू इंटू 18 प्लस 8n, 8 वंस 8, 8 वंस हो गया 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636। ठीक है बेटा, दैट इज n बाई टू इंटू 18 माइनस 8 हो गया 10, ठीक है, प्लस 8n इक्वल्स टू 636। तो 8 टू फैक्टर दोनों का है, और वी कैन राइट एज n बाई टू इंटू टू, हमने यहाँ से कॉमन निकाला, दैट इज प्लस 5, टू 5 क्या हो गया 10, प्लस टू फोर क्या हो गया 8 इक्वल्स टू 636, 2 1 2। बात समझ आई, हमसे हमने क्या काम किया, टू इनका फैक्टर है, तो इसको हमने बाहर निकाला ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। कैंसिल क्यों करेंगे, ताकि ये जो हमारे पास टर्म है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास आता है n इंटू 5 प्लस 4n equals to 636, or we can write it as 5n plus 4n square equals to 636, or 5n plus 4n square minus 636 equals 0। तो यहाँ पे ये quadratic इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, और we can change it into its standard form, that is we can arrange the equation as the decreasing order of the power of the variable। तो यहाँ पे variable n है, तो we can write as 4n square plus 5n minus 636 equals to 0। तो अब यहाँ पे आप either you can use the middle substitution of middle term, या यहाँ पे आप middle term split करोगे, या definitely या you can use the quadratic formula। अब यहाँ पे either you can find the value of n by quadratic formula or by factorization method। तो इसके आगे आई होप कि आपको ये करना आएगा, it will be easy for you to determine the value of n, that means number of terms जो हम लेंगे, कितनी terms हम लेंगे, ताकि we can determine the find the value। जैसे कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे quadratic formula इस्तेमाल करोगे, तो here we know that by using quadratic formula here a equals to 4, b किसके बराबर है 5, c है minus 636, that is b square minus 4ac किसके बराबर होगा, अगर वो b square minus 4ac 0 से बड़ा होगा तो व्हाट हैपन्स। यहाँ पे मैंने डिलिबरेटली आपको इससे आगे नहीं दिखाई, ये असाइनमेंट रखा क्योंकि ये पूरा आपने ये प्रोसीजर, ये मेथड आपने कहाँ पे पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको वो कंसेप्ट अभी भी याद है या आप उसे भूल चुके हो। नाउ आई होप कि इट इज एनफ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।